Assalamu alaikum dear students, here your lab instructor engineer Rafiya Siddiq. Today our experiment is experiment 2 to determine the center of gravity measurement of a body using reaction board. In the last experiment we learn about the center of gravity measurement using the segmentation method. The lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background and then the results. The lab objective is the measurement of the center of gravity of a body. The equipment which we need in the lab is the reaction board. What is the reaction board? First of all I tell about कि किसने इसको डिस्कवर किया. रिएक्शन बोर्ड वाज फर्स्टली कि इस टेक्निक के बारे में किसने बताया. ठीक है. रिएक्शन बोर्ड वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय द रेनॉल्ड in 1909 with the purpose of estimating the location of the CG of the human body or the body parts. The direct method of calculating the center of mass involves a device known as reaction board that is used as a lever to transmit force of weighted scale for purpose of determining the center of mass of objects placed on it. सबसे पहले रिएक्शन बोर्ड टेक्निक बेसिकली किसने डिस्कवर की? इनोड ने 1909 में. उसने बेसिकली बनाया कि हम लोग इसमें लोकेशन देखते हैं बॉडी की, होल बॉडी की और उसके पार्ट्स की. ठीक है. देन वो कहते हैं बोर्ड क्या है. बेसिकली बोर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं जो ट्रांसमिट करता है वेटेड स्केल पे, कि एक स्केल उस पर लगा होगा वेट का. ठीक है. जब हम लोग उस पर ह्यूमन बॉडी लाई करेगी तो हम उसका वेट की मेजरमेंट करेंगे. हेयर इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रिजिड बोर्ड स्पॉटेड एट ईच एंड on knife edges. Under one end is a scale and the other end is simply elevated such that the board is level. Measurement of CG location is based on the principle of static equilibrium, in which sum of all the moments or torque acting on a system about a reference axis of rotation equal to 0. In this basically reaction board किससे बना होता है? लकड़ी का एक बोर्ड होता है. ठीक है. रिजिड उसके नाइफ एजेस होते हैं. एक एंड को हम लोग उस पर स्केल होता है, सेकंड एंड को हम लोग एलिवेट करते हैं ताकि बोर्ड लेवल में रहे, मीन्स के बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे. हम लोग किस तरह से करते हैं कि बेसिकली कहता क्या है कि सम ऑफ जितनी भी मेरी मूवमेंट और टार्क हैं, ठीक है, वो रेफरेंस एक्सिस पर वो इक्वल 0 की. ये तब कंडीशन है जब कोई भी मैस वहाँ पे प्लेस नहीं होगा. लाइक इन दिस स्लाइड यू सी दैट सम ऑफ MA इज इक्वल टू 0. इट्स मीन when no object placed on the reaction board. The equation used to calculate the location of CG relative to the reference axis is MA is equal to R1D minus WBXP. Here in this equation R1 equal the scale reading when board is not loaded. It's mean कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस नहीं है like the human body. D is the distance between spotting knife edges. The movement of arm of R1 with respect to body A. WB is the weight of the board जो basically board का weight है. XP is distance from the axis A to center of gravity of the board. Here when a person assumes a prescribed position on the reaction board the equation of static equilibrium become. ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग बॉडी को प्लेस होगी रिएक्शन बोर्ड पे अकॉर्डिंग टू दी इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइक R2D minus WX minus WBXB is equal to 0. Here W is equal the person's body weight and X is distance from axis A to center of gravity of the person body. Here in this slide you see that the reaction board. इट्स लाइक ये रिएक्शन बोर्ड की आप लोग को फिगर शो हो रही होगी. ये लकड़ी का बोर्ड है. ठीक है. उसकी यहाँ पर उसने लेंथ डिफाइन की हुई है. ठीक है. R1 जैसे मैंने आपको बताया कि स्केल रीडिंग है. यहाँ पे एक लगा होगा वेट डायल टाइप लगा होगा. ठीक है. वेट आ रहा होगा. यहाँ पे नीडल होगी. RA है जो ऑब्जेक्ट A के हवाले से है. WB बेसिकली वेट है. D इज़ द डिस्टेंस है. ठीक है. जब जैसे हम बॉडी को लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. हेयर इन दिस इक्वेशन जैसे मैं इक्वेशन 2 को रीअरेंज करूँगी तो वो इस तरह से लाई करेगी R1D इज इक्वल टू WBXP विच वी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस स्लाइड. लाइक R2D माइनस WX माइनस R1D इज इक्वल टू 0. हेयर इन दिस स्लाइड यू सी दैट व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन द रिएक्शन बोर्ड, जब हम लोगों ने बॉडी को यहाँ पे प्लेस किया जैसे हम लोग R2 वाली इक्वेशन में मैंने डिस्कस किया था. ये बेसिकली आप लोग की एनालॉग स्केल टाइप लगा होगा नीडल. जैसे ही बॉडी लेटेगी यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से हम उसकी लोकेशन और पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे. ठीक है. W वेट हो जाएगा बॉडी का. D डिस्टेंस होगा. हेयर बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? द इनिशियल स्केल रीडिंग R1 एज वेल एज लेंथ ऑफ द बोर्ड नाइफ बिटवीन द एजेस.
द स्केल रीडिंग इंक्रीज टू अ न्यू वैल्यू R2 तब होगी जब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी प्लेस्ड होगी. द प्लेसमेंट ऑफ एडिट द वेट relative to the foot and determine how much of the person weight is reflected as an increase the scale reading. क्या होगा, पहला वो पॉइंट है R1 जब कोई भी वेट नहीं है, खाली बोर्ड है. सेकेंड पॉइंट पे जैसे ही मैंने बॉडी लाई की, वो हम पॉइंट बात कर रहे हैं R2 की. थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं जो बॉडी का मेरा वेट है फुट एंड से बेसिकली रिप्रेजेंट होगा मेरी स्केल पर कि कितना बॉडी का वेट होगा. If the center of mass of the person falls exactly halfway between the knife edges, then the increase in the scale reading will be exactly half of the person weight. अब बेसिकली इस पॉइंट पे वो दो बातें कर रहा है. वो कहते हैं जैसे ही मेरा सेंटर ऑफ मैस है बॉडी का वो हाफ हो जाएगा जैसे मेरे नाइफ एजेस है बोर्ड के, तो इंक्रीज़ कर देगा मेरा स्केल रीडिंग को, जितना पर्सन का बॉडी का वेट होगा उसके हाफ कर देगा. Thus, by measuring the increase in scale reading and knowing the person weight, one can calculate the distance from feet to the person. इसमें वो कहता है जैसे ही मैं स्केल रीडिंग पे उसकी मेजरमेंट ले लूँगा और मुझे पर्सन का वेट पता होगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि फीट से उसका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ मास में. The equation that is used for the measurement is x is equal to R2 minus R1 over W into D. D is the distance. To compare between the people, this distance x should be expressed as a percentage of person standing height. फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन की हाइट पे डिपेंड करेगा, हाइट टू हाइट वेरी करेगा. अगर हम लोग यहाँ पे मेल पर्सन की बात करें तो उसमें उसने परसेंटेज बताई है 57% होगी. अगर मैं फीमेल की बात करूँगी तो उसमें एवरेज परसेंटेज होगी 55. Here in this figure you see that the male and the female picture of the body weight. How to determine the CG location of a body? हम लोग किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं बॉडी का CG? A scale reading is taken when the reaction board is unloaded. Subject assume the desired position on the reaction board. A second scale reading is taken R2 with the subject maintaining the desired position. The CG location with respect to the reference axis is calculated using the equation. अब मैं आपको बेसिकली इस अगर ओवरऑल साइड को कंक्लूड करें तो बेसिकली इसमें ये बताना चाह रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, अनलोडेड पे हम लोग रीडिंग लेके जब कोई भी वेट नहीं है, बोर्ड खाली है. सेकंड पॉइंट पे जैसे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, इट्स मीन ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है, ठीक है. तो हम लोग R2 के हम लोग मेंटेन कर देंगे डिज़ायर्ड पोजीशन जो मैंने अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक सेट की है बॉडी का पॉइंट, जैसे मैंने आपको लास्ट एक्सपेरिमेंट में सेगमेंटेशन मेथड में भी बताया था. CG लोकेशन क्या करता है, हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट से उसका कंपेरिजन कर लेंगे. उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं R2 minus R1 over W into D. Here simple procedure. Identify one person in your group who will be tested. Obtain an accurate measure of height and weight using the same scale which will be used for the reaction board. Record the initial scale reading and the distance between the knife edges of the board. In this slide इसमें आप लोगों ने क्या करना है, हम लोग एक पर्सन में किसी में लेकर टेस्ट करेंगे. सबसे पहले हम उसकी हाइट लेंगे और वेट लेंगे बॉडी का, रिकॉर्ड करेंगे इनिशियल पे जब बोर्ड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है. हम लोग ने उसके नाइफ एजेस के मुताबिक उसकी लेंथ कैलकुलेट कर. सेकंड, इंस्ट्रक्ट द पार्टिसिपेंट टू लाई स्पाइन ऑन द रिएक्शन बोर्ड. टेक की केयर टू अलाइन द सोल्स ऑफ पार्टिसिपेंट फीट विद एक्सिस A. Record scale reading R2A while the participant lies on the board with arm at side. Then record the scale reading R2B while the participant lies on the board with one arm raised over the head. In this slide बेसिकली इस साइड में ये कंक्लूड करना चाह रहा है कि क्या होगा, आप लोगों ने सबसे पहले पार्टिसिपेंट को लाई करना है बोर्ड पे, जैसे आप लोग लिटाएंगे, ठीक है, अलाइन करेंगे उसके पॉइंट A के अकॉर्डिंग. फिर आप उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, विद द आर्म एट द साइड, बाजू के हवाले से. सेकंड में भी आप लोगों ने उसके पहले बाजू की साइड से आप लोगों ने उसकी रीडिंग को कैलकुलेट करना. थर्ड, record the scale reading. Third object R2C while participant lies on the board with both arms raised over the head. ये वो पॉइंट है जब उसके ह्यूमन बॉडी के दोनों बाजू रेस किए गए हैं, ठीक है. आर्म एट साइड x इज इक्वल टू इंचेस में लेना, ठीक है. x बेसिकली आप लोगों की हाइट आ जाएगी. इसी तरह आप लोगों ने B का भी कैलकुलेट करना है और C पॉइंट का भी कैलकुलेट करना है.